بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایران کے ایک شہر اصفہان میں زین العرب نام کا ایک غریب شخص رہتا تھا۔ بیچارہ دن رات کولو کے بیل کی طرح محنت مزدوری کرتا، تب کہیں جا کر اسے اور اس کے بال بچوں کو 2 وقت کی روکھی سوکھی نصیب ہوتی۔ زین العرب منہ اندھیرے اٹھتا اور جنگل میں جا کر کبھی لکڑیاں کاٹتا، کبھی لوگوں کے گھروں میں پانی بھرتا اور کبھی مزدوروں میں شامل ہو کر عید گارا ڈھوتا۔ صبح سے شام تک ایسے ہی سخت کاموں میں جتے رہنے کے باعث وہ رات کو تھکا ہارا واپس گھر آتا اور روٹی کھا کر سو جاتا۔ ہفتے کے 7 دن 12 گھنٹے کام کرتا، اسے کبھی سیر تفریح کا موقع نہ ملتا تھا۔ بہت دن یوں ہی گزر گئے۔ دن رات محنت کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اس کے پاس کچھ روپیہ جمع ہو گیا۔ خدا کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ زین العرب ایک نیک اور دیانت دار آدمی تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ دوسروں کی طرح بے ایمانی کر کے دولت جمع کرے اور محنت کرنے کے بجائے عیش و آرام کی زندگی گزارے۔ اب ایسے دن بھی آنے لگے کہ اسے اور اس کے بال بچوں کو پیٹ بھر کر روٹی ملنے لگی۔ وہ سب خدا کا شکر ادا کرتے۔ چند برس کے اندر اندر زین العرب کے پاس بہت ساری سونے کی اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ جب وہ ان اشرفیوں کو دیکھتا تو اس کا چوڑا چکلا سینہ خوشی سے پھولنے لگتا۔ یہ اس کی محنت کی کمائی تھی اور ہر شخص کو اپنی محنت کی کمائی پر فخر ہوتا ہے۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ زین العرب کو ایک غم بھی بار بار ستانے لگا۔ وہ غم یہ تھا کہ کہیں اس کی محنت کا یہ پھل کوئی چپکے سے اڑا نہ لے۔ چوروں کا کیا اعتبار اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسے ویسے کے کان میں بھنک پڑ گئی کہ زین العرب کے پاس اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی ہے تو؟ اس خیال ہی سے اس کے پسینے چھوٹنے لگے تھے کہ کوئی چالاک چور رات کے اندھیرے میں آئے اور اشرفیوں کی یہ تھیلی اٹھا کر چل دے۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ ان اشرفیوں کو چوروں کے ہاتھوں سے محفوظ کرنے کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے، ایسی جگہ چھپائے جہاں چور تو کیا چور کا باپ بھی نہ پہنچ سکے۔ ایک رات جب اصفہان شہر کے سب لوگ گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے اور گلی کوچوں میں آوارہ گرد کتوں کے سوا کوئی نہ تھا، زین العرب چپکے سے اٹھا، آہستہ سے اپنے مکان کی دیوار پھاندی اور دبے پاؤں چلتا ہوا قریب کے جنگل میں پہنچا۔ اس نے جلدی جلدی ایک درخت کے نیچے گڑھا کھودا اور اشرفیوں کی تھیلی اس میں دبا دی۔ اس نے درخت کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیا اور واپس اپنے مکان میں آ گیا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ کسی نے اسے آتے دیکھا نہ جاتے سوائے ان 1-2 کتوں کے، اور ظاہر ہے کتے کسی کو کسی کا راز نہیں بتایا کرتے۔ اور یوں زین العرب پھٹے پرانے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے سکون کی سانس لینے لگا اور سوچنے لگا کہ چند برسوں میں کچھ اور پیسے جمع ہو جائیں گے تو محنت مزدوری کا کام چھوڑ کر کوئی چھوٹی موٹی دکان کھول لوں گا۔ آخر کوئی آدمی کب تک اتنی محنت و مشقت کا کام کر سکتا ہے؟ سدا کوئی جوان نہیں رہتا اور نہ ہمیشہ اس کے بازوؤں میں طاقت رہتی ہے۔ ایک نہ ایک دن بڑھاپا آ دبوچے گا۔ 15-20 دن گزر گئے۔ ایک رات زین العرب کو خیال آیا کہ ایک نظر جا کر اپنی دبی ہوئی دولت کو دیکھ تو آئے۔ اشرفیاں گننے اور اطمینان کر لینے کی خواہش اس کے دل میں انگرائیاں لینے لگی کہ اس کی دولت درخت کے نیچے، زمین کے اندر ہر طرح محفوظ ہے۔ اس نے چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ بیوی اور بیچے گہری نیند سو رہے تھے۔ باہر گلی کوچوں میں سناٹا تھا۔ وہ دبے پاؤں مکان سے نکلا اور جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی خوش نصیبی تھی کہ آدھی رات کے وقت کسی شخص نے اسے جنگل میں جاتے نہ دیکھا۔ اسے وہ درخت اچھی طرح یاد تھا جس کے نیچے اس نے گڑھا کھود کر اشرفیوں کی تھیلی دبائی تھی۔ وہ سیدھا اس درخت کے پاس پہنچا۔ درخت کے ارد گرد کی مٹی نرم اور پولی تھی۔ زین العرب خوشی خوشی دونوں ہاتھوں سے مٹی کھود کھود کر پرے پھینکنے لگا۔ صرف 1 ہاتھ کی گہرائی میں اس کا خزانہ دفن تھا، لیکن اس نے تو کئی ہاتھ گہری مٹی کھود ڈالی تھی اور خزانے کا کہیں پتہ نہ تھا۔ یہ دیکھ کر زین العرب کے ہوش اڑ گئے کہ اس گڑھے میں سے تھیلی غائب تھی۔ سیدھا کھڑا ہو کر اس نے درخت کو نیچے سے اوپر تک خوب غور سے دیکھا۔ بے شک یہی وہ درخت تھا۔ اس کی آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ اس نے جلدی جلدی دوسری جگہ سے مٹی ہٹانی شروع کی، مگر بے سود۔ وہاں بھی اس کی تھیلی نہ تھی۔ اس کو پورا یقین تھا کہ اس درخت کے نیچے اس نے تھیلی دفن کی تھی، لیکن کوئی نہ معلوم چور یہ تھیلی نکال کر لے گیا تھا۔ یہ سوچتے ہی اس کا سر چکرانے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر چور کو اس تھیلی کی موجودگی کا علم کیسے ہوا؟ کیا کسی نے اسے گھر سے نکلتے اور جنگل میں گڑھا کھود کر تھیلی دباتے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ بیچارے مزدور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اسے یوں لگا جیسے سارا جنگل گھوم رہا ہے اور درختوں کے پتے تالیاں بجا بجا کر اس کی مصیبت پر خوش ہو رہے ہیں۔
उसे बिल्कुल याद नहीं रहा कि वो अपने मकान तक किसी तरह वापस पहुंचा। उसकी बीवी अभी तक सो रही थी, वरना वो अपने शौहर की ये अबतर हालत देखकर जरूर पूछगछ करती कि वो इतनी रात गए कहाँ गया था। उस रात उसे बिल्कुल नींद ना आई। रह रहकर दिल आप ही आप बैठने लगता और आंखों में आंसू भर आते। उसे किसी तरह यकीन ना आता था कि वो दौलत जो उसने बरसों की मेहनत के बाद जमा की थी, यूं आना फाना हाथ से चली गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो चोर को कैसे तलाश करे और उस मामले में किससे मशवरा ले। कोई भी ऐसा ना था जो हमदर्दी और अफसोस के दो बोल ही उसके हक में कह देता। फिर सवाल ये था कि अगर वो किसी से फरियाद करे भी तो उससे पूछा जाएगा कि ये अशरफियां आईं कहाँ से। कोई भी ये यकीन करने को तैयार ना होगा कि एक गरीब मजदूर इतनी अशरफियां जमा कर सकता है। गर्ज जू जू वो इस मसले पर गौर करता, तू मायूसी और सदमा उसके दिल पर तारी होता जाता। कई दिन बीत गए। वो इस सदमे से इतना निढाल हो गया कि काम पर भी ना जा सका और उसके बच्चे भूख से बलकने लगे। आखिर उसे मजदूरी की तलाश में जाना ही पड़ा। शहर में एक दौलतमंद सौदागर के मकान की मरम्मत हो रही थी। जैनुल अरब को वहां काम मिल गया। उसने उस सौदागर के बारे में कई बार सुना था कि वो बहुत अच्छा आदमी है और अक्सर गरीबों की मदद करता है। उसने सोचा कि अपनी मुसीबत की कहानी उसे सुनाए। शायद वो कोई ऐसी तदबीर करे कि मेरी अशरफियों की थैली वापस मिल जाए। एक रोज काम खत्म करने के बाद जब वो अपनी मजदूरी वसूल करने सौदागर के पास गया, उसने खुद ही कहा, मियाँ मजदूर, शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम वही हो ना जो कभी कभी जंगल में जाकर लकड़ियां काटा करते थे। जैनुल अरब हैरत से सौदागर की सूरत तकने लगा। फिर उसने अदब से गर्दन झुकाकर जवाब दिया, जी हाँ जनाब, मैं वही हूँ। ताज्जुब है आपने पहचान लिया, वरना मुझ गरीब को इस शहर में जानने वाला कौन है। ये कहते ही जैनुल अरब की आवाज गम से भर आई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सौदागर की नजरों से उसकी ये हालत छुपी ना रह सकी। चंद लम्हे चुप रहने के बाद वो बोला, मियाँ मजदूर, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें कोई रंज पहुंचा है। मुझे अपना खैर खा और दोस्त समझकर बयान करो कि क्या तकलीफ है। मुमकिन है मैं तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए कोई अच्छा मशवरा दे सकूं। सौदागर के मुंह से हमदर्दी और मोहब्बत के ये कलमे सुनकर जैनुल अरब में सब्र की ताब न रही। वो फूट फूट कर रोने लगा। जब अच्छी तरह दिल की भड़ास निकल गई तो सौदागर को शुरू से आखिर तक अपनी बेता कह सुनाई। वो गौर से सुनता रहा। वो दास्तान कह चुका तो सौदागर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़ी शफकत से कहा, मियाँ मजदूर, मुझे भी इस किस्से से सख्त रंज पहुंचा है, लेकिन हौसला रखो, तुम मर्द हो और मर्द मुसीबत के वक्त हौसला हाथ से नहीं छोड़ते। ये खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए एक कड़ी आजमाइश है। सब्र से काम लो। वो अशरफियां तुमने मेहनत और हक़ हलाल की कमाई से हासिल की हैं और कोई चोर उन्हें चुरा नहीं सकता। मुझे इस मामले पर गौर करके कोई ऐसी तदबीर सोचनी पड़ेगी कि तुम्हारी खोई हुई अशरफियां तुम्हें वापस मिल जाएं। इतने बड़े शहर में उस शख्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है जिसके हाथ तुम्हारी दौलत लगी है, लेकिन खुदा कोई न कोई सबब जरूर पैदा कर देगा। ऐसा मालूम होता है कि जब तुम रात के अंधेरे में गड्ढा खोदकर अशरफियों की थैली दबा रहे थे, कोई शख्स वहां मौजूद था। जब तुम घर वापस चले गए तो वो शख्स दरख्त के नीचे गया और गड्ढे में से थैली निकालकर रफू चक्कर हो गया। अब तुम मुझे 10 दिन की मोहलत दो। इस अरसे में शायद कोई ऐसी तदबीर मेरे जहन में आ जाए जिस पर अमल करके मैं तुम्हारी खोई हुई दौलत चोर से वापस दिला सकूं। जैनुल अरब ने खुश होकर कहा, जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जिंदगी भर आपके बाल बच्चों को दुआएं दूंगा। 10 दिन की बसात ही क्या थी, पलक झपकते में गुजर गए। सौदागर ने इस दौरान में सैकड़ों तदबीरें सोची, मगर उनमें एक भी ऐसी न थी जो कारामद साबित होती और जिस पर अमल करने से बेचारे मजदूर की किस्मत जाग उठती। ठीक 11वें रोज जैनुल अरब उम्मीदों भरा दिल लेकर सौदागर की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने जैनुल अरब को बड़ी मोहब्बत से अपने करीब बिठाया और कहने लगा, मेरे भाई, यकीन करो, इन 10 दिनों में दिन रात में तुम्हारे मामले ही पर गौर करता रहा हूँ। कोई तदबीर ऐसी नहीं सोची जो कारामद होती। खुदा के काम अजीबो गरीब हैं। वो काम जो भी करता है बेहतर ही करता है। मुमकिन है कुछ अरसे बाद खुद ब खुद ऐसी सूरत पेश आए कि चोर का अता पता लग सके। तुम्हें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। अभी उसकी बात खत्म न हुई थी कि शहर की गलियों में फिरने वाला एक पागल फकीर वहां आ पहुंचा। उसके कपड़े बोसीदा और पुराने थे। दाढ़ी, सर और मूछों के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। मुंह से राल टपक रही थी। उसने जैनुल अरब और अमीर आदमी को अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से घूरा, फिर एक आंख दबाकर बोला, ये चुपके चुपके क्या बातें हो रही हैं यारो?
कुछ हमें भी तो बताओ कि मामला क्या है। सौदागर ने ज़ैनुल अरब से कहा, मेरा ख्याल है उस फकीर को सारा किस्सा बता देना चाहिए। कभी कभी ये दीवाने लोग ऐसी बात बता देते हैं जो दानाओं के जहन में भी नहीं आती। ज़ैनुल अरब ने जवाब दिया, जनाब मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ, आप फरमाते हैं तो जरूर बता दीजिए। दीवाने फकीर ने अचानक इन दोनों के गिर्द घूम घूम कर नाचना शुरू कर दिया। साथ साथ वो तालियां भी बजाता जा रहा था। फकीर को नाचते देखकर गली में से गुजरने वाला एक लड़का भी ये तमाशा देखने को रुक गया। थोड़ी देर नाचने के बाद फकीर आप थम गया और डांट कर बोला, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? जल्दी बताओ क्या मामला है और तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे? अगर नहीं बताओगे तो ईंट मारकर तुम दोनों के सर फाड़ दूंगा। और ये कहते ही वो ईंट उठाने लगा। तब सौदागर ने फकीर को रोककर शुरू से आखिर तक ज़ैनुल अरब पर जो बीती थी वो कह सुनाई। दीवाना गौर से सुनता रहा। जब सारा किस्सा तमाम हुआ तो उसने उठकर फिर नाचना शुरू कर दिया। सौदागर और ज़ैनुल अरब चुपचाप दीवाने को नाचते हुए देखते रहे। आखिर उसने कहा, हाँ मैंने चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। दही है वही है, मगर वो चोर नहीं है, वो तो दवा की तलाश में आया था। उसे उस दरख्त की जड़ों की जरूरत थी। जब उसने जड़ें काटने के लिए जमीन खोदी तो अशरफियों की थैली भी निकल आई। जड़ों के साथ वो थैली भी ले गया, थैली भी ले गया। आहा! और यूं वो फकीर नाचता मिटकाता मकान से बाहर निकल गया। लड़का वहीं खड़ा रहा। फकीर के जाने के बाद सौदागर और ज़ैनुल अरब आपस में इस बात पर बहस करने लगे कि फकीर ने जो कुछ कहा है आखिर उसका असल मतलब क्या था। इतने में वो लड़का बोल पड़ा, उस दरख्त का नाम क्या है जिसके नीचे उस मजदूर ने अशरफियों की थैली दबाई थी? वो दरख्त जैतून का था, ज़ैनुल अरब ने कहा। तो फिर मामला साफ है, लड़का कहने लगा। अब तुम्हें सिर्फ ये करना है कि शहर में जितने भी तबीब हैं बारी बारी सबके पास जाकर पूछो कि क्या पिछले 10-15 दिनों में उनके पास कोई ऐसा मरीज भी आया था जिसको उन्होंने दवा बनाने के लिए जैतून की जड़ें बताई थीं। सौदागर ने उसी वक्त ज़ैनुल अरब को अपने साथ लिया और शहर के तबीबों के पास जाकर पूछने लगा कि क्या किसी ने जैतून की जड़ें दवा के तौर पर इस्तेमाल करने की हिदायत किसी मरीज को की है। एक तबीब ने इकरार किया और उसने सौदागर को बताया, कुछ रोज पहले शहर का नामी गिरामी ताजिर ख्वाजा समंदर मेरे पास आया था। उसे दमे का मरज था। मैंने उसे एक दवा दी और कहा कि जैतून के दरख्त की जड़ें हासिल करके उस दवा को उन जड़ों में जोश दो और फिर 3 दिन तक पियो। खुदा ने चाहा तो ये तकलीफ जाती रहेगी। ख्वाजा समंदर को शहर का बच्चा बच्चा जानता था। वो अपनी आलीशान हवेली में बादशाहों की तरह रहता था और निहायत नेक आदमी समझा जाता था। सौदागर ज़ैनुल अरब को लेकर ख्वाजा समंदर की हवेली में गया और अपनी आमद की इत्तला कराई। ख्वाजा ने फौरन उन्हें अंदर बुला लिया। दुआ सलाम और मिजाज पुरसी के बाद सौदागर ने ख्वाजा को ज़ैनुल अरब का वाक़या सुनाया। ख्वाजा समंदर हंसकर बोला, बेशक मैं आधी रात के बाद जंगल में जैतून की जड़ें लेने गया था। दरअसल मुझे सुबह सैर की हमेशा से आदत है, इसलिए मैंने अपने किसी नौकर को तकलीफ देने की जरूरत महसूस न की और खुद ही टहलता हुआ जंगल में चला गया। जब मैंने जैतून के एक दरख्त की जड़ें खोदें तो वहां से अशरफियों की थैली बरामद हुई। मैंने सोचा ये थैली मैं अपने साथ ले जाता हूँ, ऐसा ना हो किसी और के हाथ लग जाए और उसके असल मालिक तक ना पहुंच सके। मैं खुद उस फिक्र में था कि उस थैली के मालिक का पता चलाकर उसकी अमानत उसके हवाले करूं। अब मियाँ मजदूर मेहरबानी करके ये बताओ कि इस थैली में कितनी अशरफियां थीं? 30 अशरफियां थीं जनाब, ज़ैनुल अरब ने जवाब दिया। और थैली जिस कपड़े की है उसका रंग सब्ज है। बिल्कुल ठीक, ख्वाजा समंदर ने खुश होकर कहा। फिर उसने अपनी लोहे की तजोरी खोलकर ज़ैनुल अरब की थैली निकालकर सामने रख दी। ज़ैनुल अरब की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। उसने बढ़कर ख्वाजा समंदर के हाथ चूम लिए। ख्वाजा ने अपने पास से 25 अशरफियां और ज़ैनुल अरब को दी और कहा, ये उस तकलीफ का हकीर मुआवजा है जो मेरी उस हरकत के बायस तुम्हें इतने दिन बर्दाश्त करनी पड़ी। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।